Hello students, we have already completed our lesson number 4, isn't it? Animals food and feeding habits. Now we are going to start next lesson as lesson number 7. Okay children, we are not going to do lesson number 5, we will do it later on. So now I am going to start lesson 7. Is it okay? Lesson 7, and the title of our chapter is housing and clothing. Housing and clothing, which is on page number 57. Is it okay children? So we have done chapter 4 and we are just now going to start lesson number 7. So the chapter, the name itself refers, what we are going to learn in this chapter is about housing, the different types of houses, and about clothing, the different types of clothes that we use. Is it okay children? So what is the learning plan? At the end of this chapter, learners will be able to, so at last जब पूरा आप चैप्टर की गो थ्रू होंगे तो आपको क्या पता चलेगी? लर्नर हु आर लर्नर, यू द चिल्ड्रन. सो व्हाट द लर्नर विल कम टू नो अबाउट इज रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हाउस. व्हाई एनीवन नीड्स ए हाउस. रिकॉग्नाइज मीन्स एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट समथिंग. रिकॉग्नाइजेशन मतलब आपको कुछ पता चलने की वो एबिलिटी आना. हाँ, व्हाई वी नीड अ हाउस, यू विल कम टू नो अबाउट दिस. लिस्ट द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस. व्हाट आर द different types of materials that we use to make a house. Explain the qualities of a clean house. Next, in order to live we need a house, and how in which type of house shall we live, depending upon the place where we are, and how to keep our house neat and clean. Describe the importance of clothes and why we need clothes. What is the importance of the clothes? Identify natural fibers and human made fibers, with which clothes are made up of. So many types of fibers, and we will just learn about the different type of fibers which we use. Is it okay children? So this is our learning plan concerned to this chapter. Now think about it. Every time before starting, before moving ahead, what we used to do, we used to think about the particular thing which is given here, particular concept which is given here. A place for comfort and protection. What it is? A place for comfort, जहाँ आप comfortable feel कर सकते हो और जहाँ आपकी अच्छी protection हो सकती है. Have you noticed different kinds of houses on your way to school? Children, have you ever noticed this? Have you ever noticed while coming to school, have you ever noticed different types of houses on your way to school? जब आप स्कूल आते हो तरह तरह के घर आप देखते हो ना. कहीं बंगलो टाइप के घर है, कहीं एक छोटी सी घर है, कहीं बहुत बड़ा घर है, कहीं फ्लैट स्टाइल में मतलब अपार्टमेंट जैसा 2-3 फ्लोर की घर है ना. तरह तरह के घर आप देखे होंगे. हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस आर देयर. आपकी घर से आपके स्कूल आने तक की वे में आप कितने वेराइटीज ऑफ हाउसेस देखे थे. देयर आर डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस फॉर पीपल टू स्टे, इजंट इट? इन एवरी हाउस हु यूज्ड टू स्टे, पीपल यूज्ड टू स्टे, बट देयर आर डिफरेंट हाउसेस. There are variety of houses in different places, in different तरह की जगह में अलग अलग तरीके के घर बने हुए हैं. For what? For people to stay. So have you ever noticed this or not? Okay. Now let us just start our chapter and see what is written here. House. So children, first of all say me, what do you mean by a house? ये house क्या है? Why do we need this? Let us see. We all need a house to live in. So why everyone of us need a house? Because in order to live, कहीं एक जगह रहने के लिए तो अपने लिए एक जगह चाहिए या नहीं? Because okay, in the morning time we will be at school and our elders will be at offices and they will go to their workplace, but after finishing our work, everyone have to reach their home, isn't it? So each and every person in the society needs a shelter or house to live in. So house किसके लिए चाहिए हमें? We all of us need this. Why? To live in, रहने के लिए. It protects us from what? It protects us from heat, cold, wind, rain, wild animals and thieves, isn't it children? If it is summer season, how we can experience
too hot outside, isn't it? So our house protects us from that heat because घर पे अपन कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, फैन पंखा जो भी है अपनी घर पे वो चीज़ चला के अपन आराम से घर के अंदर रह सकते हैं. So our house is protecting us from heat. Again cold, yes, now winters are going to come. In winter season also if we stay inside our house at nights we can feel warm, है ना, or else we will feel too cold. Rain, बारिश की मौसम हुआ अभी, जब ज़बरदस्त बारिश आ रही है तो यस 2-3 मिनट के लिए आपको बारिश में थोड़ी देर खेलने की मन होएगी, बट वी कांट स्टे कंटिन्यूसली इन द रेन ऑल्सो. सो even our house protects us from rain also, even from wild animals, so many types of animals. चलो अपन जंगल में तो नहीं रह रहे. वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जैसा डेंजरस एनिमल्स हो, स्नेक वगैरह हो, या कभी जो हिली एरियाज़ के नज़दीक में भी कुछ हाउसेस में लोग रहते हैं, अगर नहीं रहे तो वो वाइल्ड एनिमल्स उधर कभी भी दिन में रात में घूमते हुए भी आ सकते हैं. स्नेक्स आ सकते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं. सो तो ये सब आके अपन को अटैक कर सकते हैं अगर अपन एक घर में नहीं रहे तो. सो इवन आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टू एंड थीव्स. यस, थीव्स तो कौन कब चोर जैसा आ जाएंगे कोई पता नहीं है अपन को, है ना. इफ मतलब बाहर ही आप रह रहे हो, आपकी बिलोंगिंग्स कहाँ रखोगे आप, है ना. वी विल हैव सो मेनी थिंग्स वी नीड एवरी डे वी नीड सो मेनी थिंग्स. सो वेयर वी विल कीप आवर थिंग्स. सो in order to survive we need a shelter or house to live in. So this house protects us from heat, cold, wind, rain, wild animals and thieves. People living in different regions and climates make different kinds of houses. So children, people living in different regions, what do you mean by a region? region. region means a very large area of land. बहुत बड़ा, मतलब एक जगह, एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलरली एक एरिया को हम एक रीजन बोलते हैं. जैसा कुछ लोग रहते हैं हिली रीजन्स, मतलब जो पहाड़ की तरफ एरियाज़ में रहते हैं, हिली रीजन्स. स्नो रीजन्स मतलब जहाँ बहुत स्नोफॉल होते हैं वो स्नो रीजन्स होते हैं, है ना. सो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं जहाँ सी शोर एरिया हो वो कोस्टल रीजन में आता है. तो पर्टिकुलर एरिया, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा एरिया, जो लैंड बहुत बड़ा लार्ज एरिया को एक पर्टिकुलर रीजन बोलते हैं. जैसा अपनी इंडिया बहुत वेरी बिग एंड वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें तरह तरह के रीजन्स, तरह तरह के एरियाज है. सो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया वेयर वी लिव and climates, what about the climate of the particular place. कोई भी पर्टिकुलर जगह में आप रह रहे हो उधर की क्लाइमेट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करके हम द पीपल यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस भी तरह तरह का बनाते हैं. नहीं तो हर जगह एक जैसा हाउसेस ही क्यों नहीं देख सकते हैं. अपन डेजर्ट एरिया में जाके एक अलग तरीके की कैंपिंग वगैरह में जब जाते हैं तो आप उधर देख सकते हो किस तरफ का हाउसेस होते हैं, या सोल्जर्स वगैरह जो कैंपिंग करते वो कहाँ कैसा रहते हैं, तब का तब उधर घर कंस्ट्रक्ट होता है क्या. विलेज एरियाज में जाओ आपको उधर एक अलग तरीके के घर मिलते हैं, है ना. मेट्रोपॉलिटन जैसा बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाओ, शहरों में जाओ, आप उधर की कंस्ट्रक्शन अलग होता है, इज़न्ट इट. अगर हिली एरियाज में उधर अलग होता है. कहीं जहाँ स्नोफॉल है उधर जाके मैं बड़ा बंगला बनाऊंगा सोचेंगे कोई, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए बंगला देयर, है ना. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरिया वेयर वी आर लिविंग एंड द क्लाइमेट अराउंड अस, अपने आसपास में जो क्लाइमेट है उसके ऊपर डिपेंड करके हमको अपनी हाउस कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए. नाउ given below are some houses found in different places. So नीचे आप कुछ पिक्चर्स दिए हैं, आप देख सकते हो. देयर इज़ अ वन और अदर टाइप ऑफ हाउस इन एवरी पिक्चर. हर एक पिक्चर में आप एक हाउस देख सकते हो विच आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. वी कैन सी दिस टाइप ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. द वर्ड्स रिलेटेड टू दोज प्लेसेस आर ऑल्सो गिवन. सो किस जगह में कैसे घर बनाया जाता है वो भी इधर दिया हुआ है. Write the correct numbers in the boxes, and we can see a small yellow color box provided beside the picture. So you have to write the correct word in that box. मतलब correct word जो भी word लिखा हुआ है उसके सामने number भी है. You just have to write the number which is apt to the
picture. Okay children, now let us see the help box. First of all, snow. स्नो मतलब स्नोई एरियाज में कौन सी घर आप देख सकते हो? हिल्स, रेन्स, मड एंड प्लेन्स. सो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है स्नो. आपने ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस in your second class, I think, isn't it children? You could have already learnt about these types of houses. आप second class में भी किए थे, है ना? which area में, मतलब कौन सी एरिया में कैसी घर की कंस्ट्रक्शन होती है, आपने ऑलरेडी लर्न किया था. सो स्नो एरियाज में स्पेशली द टाइप ऑफ हाउसेस दैट आर मेड इन द स्नोई एरियाज आर नथिंग बट इग्लूस. व्हाट दे आर कॉल्ड चिल्ड्रन? इग्लूस. आपने ईवीएस में ये सब ऑलरेडी कर चुके थे. सो स्नोई एरियाज में क्या देख सकते हैं हम? इग्लू देख सकते हैं. सो राइट number 1 beside the yellow box provided at the igloo. okay, 1 लिखिए इधर. नाउ हिल्स. हिली एरियाज में कैसा कंस्ट्रक्शन होता है? हिली एरियाज में पता है आपको कैसा कंस्ट्रक्शन होता है? सी सेकेंड नंबर पे जो हाउस इधर ये ऊपर जस्ट हेल्प बॉक्स के ऊपर जो हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ ना, ऐसी हाउसेस आपको हिली एरियाज में दिखते हैं. देखो क्योंकि इनकी रूफ है ना बिल्कुल स्लोप, ऐसा साइड में इनकी स्लोपिंग रूफ्स होते हैं ताकि उधर जो भी रेनी सीजन में वाटर आई हो या स्नोफॉल भी हो तो वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए. इसके लिए हिली एरियाज में ऐसी टाइप की रूफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं हम. नेक्स्ट थर्ड, रेन्स. रेनी एरिया में कहाँ, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर प्लेसेस है अपनी कंट्री में जहाँ कंटिन्यूसली वी कैन जस्ट एक्सपीरियंस कंटिन्यूस रेनफॉल देयर. सो ऐसी जगह लोगों को क्या हर जगह ही उधर कंटिन्यूसली रेनफॉल होता है, तो हमेशा कहीं स्लोप्स में या नीचे नीचे जगहों में वो लोग घर नहीं बना सकते हैं बिकॉज हमेशा कंटिन्यूस रेनफॉल होने से पानी बहुत फ्लडेड हो जाता है और पानी बहुत स्टैग्नेट भी हो जाता है. सो व्हाट the people living in rainy areas used to do is they used to build the houses on wooden posts. मतलब एक पहले वुडन पोस्ट से नीचे एक छोटी गैलरी जैसा बना के उसके ऊपर वो लोग घर बनाते हैं ताकि रेनी सीजन में ज़्यादा वाटर आ गया तो भी उनके घर उसमें ड्राउन ना होए. मतलब in order to get rid of the water that is being collected, they used to build their houses on the wooden post के ऊपर. So we can see such a type of house here in this picture. So write 3 here. 3 नंबर रेनी एरियाज में ऐसी टाइप की हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं. नाउ 4th नंबर इट इज़ मड. मड यूज़ करके, मड मीन्स क्ले, मड यूज़ करके मिट्टी से जो घर बना हुआ होता है वो क्या है? ये अपन विलेजेस में ज़्यादातर ऐसे हाउसेस देख सकते हैं. सो दिस हियर हट जो दिख रही है आप इधर 4 लिख सकते हो. नाउ प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? जहाँ बिल्कुल फ्लैट लैंड आपको अवेलेबल है उधर ऐसी फ्लैट्स हो, इंडिविजुअल हाउस हो, ड्यूप्लेक्स हो, इसी तरह के घर बनते हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट 5 हियर. सो चिल्ड्रन वी केम टू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. सो पीपल यूज टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द रीजन एंड क्लाइमेट where they live. Is it okay children? Now materials for houses. So in order to make something, कोई भी चीज़ बनाने के लिए we need some or other things ना, हमको कुछ मटेरियल चाहिए. जस्ट लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट में आप कोई भी चीज़ जब बनाते हो we need so many things for that to complete that particular craft or artwork. So in the same way, in order to construct a house, कोई भी हाउस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको कुछ पर्टिकुलर मटेरियल, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स की ज़रूरत है. लेट अस नो व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल्स वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस. Pakka houses are made of bricks and cement. So children, you could have already heard about पक्का houses and कच्चा houses, है ना. कच्चा houses मतलब जो mud, straw इन सब से बना हुआ रहता है वो कच्चा houses है. पक्का houses मतलब strong houses जो सीमेंट और bricks से कंस्ट्रक्ट हुआ होता है. ईट और सीमेंट यूज़ करके पक्का houses बनाते हैं. These are strong houses and are not damaged even during storms and floods. ये पक्का हाउस क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उसमें जो मटीरियल यूज़ किया वो भी स्ट्रॉन्ग है. दैट्स वाई दिस हाउसेस आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड दे वोंट गेट डैमेज्ड. ये हाउसेस कभी भी डैमेज नहीं होते हैं इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स. कभी भी स्टॉर्म्स आ जाए या फ्लड्स आ जाए ऐसी सिचुएशन में भी ये इस टाइप ऑफ हाउसेस हमको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं एंड दे विल नेवर गेट डैमेज्ड. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉर्म्स? स्टॉर्म्स मीन्स आंधी तूफान, लॉट ऑफ रेनफॉल और बहुत ज़ोरदार विंड्स भी जब आते हैं उस टाइम में भी अपनी घर
अगर आपने पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट किया, इट विल गिव यू प्रोटेक्शन। एंड इवन इन फ्लड्स मीन्स कंटिन्यूस रेनफॉल जब होता है, बहुत कंटिन्यूस रेनफॉल होता है, उस टाइम पे भी आपको इस घर से आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल सकता है। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो we have to construct pakka houses to be pakka houses, and we have to prefer pakka houses mostly because they are the strong houses and they even protect us from floods and storms. Next, what are कच्चा houses made of? कच्चा houses are made of mud and straws. देखो आप पिक्चर नंबर 4 जहाँ अपन लिखा है इधर आप देख सकते हो, कच्चा हाउस मिट्टी से बना हुआ होता है। एंड स्ट्रॉस, STRAWS, स्ट्रॉस मीन्स सूखी घास जो होता है, फार्मर्स प्लांट्स जैसा क्रॉप आता है उनकी, गेहूं की, राइस की, जो भी क्रॉप, उनके अंदर की ग्रेन्स निकालने के बाद वो सूखी घास जो वो उसकी जो प्लांट की जो घास होता है ना, उसको ड्राई करके वो ड्राई लीव्स को रखते हैं। सो ये ड्राई लीव्स को हम कच्चा हाउस की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई अब देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म या फ्लड्स जब आते हैं, मान लीजिए आंधी तूफान आया तो कितना लॉट ऑफ रेनफॉल होगा एंड इवन वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स में ब्लो, उससे क्या रेनफॉल जब होता है मिट्टी गल जाएगी। दैट्स वाई these type of houses get damaged. These are weak houses. ये ना अपनी पक्का हाउस जैसा strong नहीं है. These are very weak and can be damaged easily by natural calamities such as storms, rains and floods. इसीलिए जब storms हो, lot of rainfall हो, floods जैसा चीज़ ये सब जब आते हैं तब ये घर easily, very easily damage हो सकता है. Children, here you can see one more word, calamities. What do you mean by calamities? Calamities क्या होता है? Things such as floods that can cause great harm to people and nature. आंधी तूफान, बारिश, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती हैं उससे भी बहुत लॉस होता है किसका, नेचर का भी, एंड इवन फॉर पीपल ऑल्सो, इंसान जो भी लोग उधर रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में. सो कैलामिटीज़ मतलब वो बड़े बड़े जो आंधी तूफान जैसा या बाढ़ जैसा ये सब जब आते हैं जिसकी वजह से पीपल और नेचर सब सफ़र करते हैं, ऐसी पर्टिकुलर थिंग्स को हम कैलामिटीज़ बोलते हैं. ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ है, ये किसी की हाथ में नहीं है कंट्रोल करने के लिए. पहले तो हमको फ्लड्स कब आते हैं पता नहीं, अभी फिर भी वेदर रिपोर्ट की वजह से हाँ इधर हो सकता है. तो जो लोग ऐसा सी एरिया में रहते हैं या जो बहुत नीचे की जगह में रहते हैं उनको भी पहले से अलर्ट करके वो एरिया से उनको खाली भी करवा देते हैं गवर्नमेंट अपनी इन्फो. जब जैसा वेदर रिपोर्ट ऐसा आता है तो पहले ही अलर्ट होके उनको अभी सेव कर रहे. बट पहले ये सब भी नहीं होता था तो किसी को पता भी नहीं चलता था. और ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ मतलब जो नेचर की वजह से अचानक हो जाता है, जैसा स्टॉर्म्स है मतलब लॉट ऑफ रेनफॉल, आंधी तूफान, बाढ़ और बहुत लगातार बारिश, ये सब कोई रोक नहीं सकते हैं ना. जब ऐसी चीज़ आते हैं तो जहाँ ऐसी घर कंस्ट्रक्ट किया तो वो पीपल को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, दे विल ईजीली गेट डैमेज्ड. सो we have discussed about both pakka and kacha houses. Children, just turn your page now. Houses in the hills have sloping roofs made of tiles to let the water and snow slide off easily. So houses in the hills, hilly areas में जो भी houses है उनके रूफ मतलब उनकी छत कैसी होती है, स्लोपिंग. स्लोप मतलब थोड़ा टेढ़ा सा, ऐसा स्लैंटिंग लाइन जो बोलते हैं ना, उस पोजीशन में स्लोपिंग रूफ्स होते हैं उनका. और वो रूफ्स किससे बनते हैं? मेड ऑफ टाइल्स, तरह तरह के टाइल्स यूज़ करते हैं टू लेट द वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ ईजीली. अगर मान लीजिए वो लोग अगर फ्लैट रूफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो भी रेन वाटर आया या स्नो आया वो सब उधर कलेक्ट होके स्टैग्नेंट होने की चांसेस है. बट ऐसा स्लोपिंग रूफ कंस्ट्रक्ट करने से क्या इजीली जब रेनफॉल हुआ तो भी वो पानी नीचे चला जाएगा, हिल के नीचे से ऊपर से नीचे आ जाएगा, या स्नो भी हो तो इजीली स्लाइड ऑफ मतलब आराम से स्लिप होके आराम से नीचे आ सकता है. दैट्स वाई पीपल हु आर लिविंग इन द हिली रीजन्स, हिली एरियाज में जो भी रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ से घर बनाते हैं. चिल्ड्रन, जस्ट सी वेयर वी हैव रिटन 2, सेकंड नंबर में जहाँ लिखा आप इधर देख सकते हो ये स्लोपिंग रूफ वाली हाउस. इज इट ओके? नाउ एस्किमोस
make their houses with ice blocks. Eskimos मतलब people who live in snow areas, मतलब जहाँ snowfall बहुत होता है इसी regions में कुछ लोग रहते हैं. they are a different type of people from different culture. उनकी अलग तरह तरह की एरिया से आके लोग इधर रहते हैं. एस्किमोस मीन्स पीपल हु लिव इन स्नोई एरियाज में जो पीपल रहते हैं वो कहाँ रहते हैं. दे यूज टू मेक देयर हाउसेस विथ आइस ब्लॉक्स. वो लोग स्नोई एरियाज में रहते हैं तो उधर जो आइस ब्लॉक्स मिलते हैं उससे घर बनाते हैं. हु दे आर एस्किमोस, ESKIMOS. These houses are called igloos. So ऐसा आइस ब्लॉक से जो घर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा igloos. What it is? Igloos. And the people who are living in these areas are known as Eskimos. ये लोग आइस ब्लॉक से घर बना के उधर रहते हैं. An igloo is a dome-shaped building built with the blocks of ice. Igloo क्या होता है? एक डोम जैसा शेप है. डोम शेप मतलब जो सर्कुलर भी नहीं है, स्पीयर भी नहीं है, मतलब सर्कल जैसा शेप दिखेगी थोड़ा कर्व होके. आपने इग्लू की पिक्चर देखिए आप इस पिक्चर में. यस इन द ये देखिए ये कैसा कंप्लीट सर्कल जैसा दिख रही है ना, थोड़ा कर्व होके. एक सर्कल जैसा ये कर्व और कर्विंग्स और सर्कल की शेप में जो होता है इसी पर्टिकुलर शेप को हम डोम शेप्ड बोलते हैं. सो इग्लू एक डोम शेप्ड बिल्डिंग है जिसको आइस ब्लॉक्स से कंस्ट्रक्ट किया जाते हैं. A short door opening and a tunnel in front of the dome structure stops heat inside from flowing outside and keeps the igloo warmer than outside. So आपको डाउट हो सकता है मैम वैसी स्नोफॉल और ये आइस से जब घर बनाया तो उसके अंदर कैसा रह सकते हैं हम. एक्चुअली क्या ये हाउसेस आपको एक शॉर्ट डोर ओपनिंग है. इग्लू की देखो फ्रंट साइड में आप देखो तो एक छोटा सा छोटी सी ओपनिंग दिखेगी आपको. एंड टनल इन फ्रंट ऑफ द डोम स्ट्रक्चर्स. डोम स्ट्रक्चर के सामने वो लोग एक टनल मतलब अंडरग्राउंड पैसेज होता है. जैसे सुरंग जो बोलते हैं ना वो अंडरग्राउंड पैसेज डग करके रखते हैं. और इन फ्रंट ऑफ द डोम स्ट्रक्चर स्टॉप्स. ये अंडरग्राउंड पैसेज की वजह से उधर क्या होता है ये अंडरग्राउंड पैसेज से अंदर की जो भी आइस ब्लॉक्स मेल्ट होते हैं ना वो पानी उधर से निकल जाता है और बाहर की ठंडक अंदर आने नहीं देते हैं. वो पूरा उसको क्लोज करके रखते हैं. दैट्स वाई. सो इसी स्ट्रक्चर की वजह से व्हाट इट डूज इज इट जस्ट स्टॉप्स हीट इनसाइड फ्रॉम फ्लोइंग आउटसाइड. अंदर जो क्योंकि पूरा बनाया तो आइस ब्लॉक से ही फिर भी बाहर की ठंडा हवा अंदर नहीं आ रही है और अंदर की जो पूरा क्लोज्ड एरिया कर दिया तो अंदर की जो गर्मापन है वो बाहर नहीं जा रही है. इसी वजह से इग्लू के अंदर आपको बाहर से कंपेयर करो तो थोड़ा तो हल्का मतलब जितना ठंड है वो महसूस नहीं होएगी. फिर भी आप रह सकते हो क्योंकि ये एस्किमोस वगैरह क्या कैंपिंग के लिए आते हैं और उधर ही रह जाते हैं बहुत. जैसा 8 months 6 months 10 months डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क दे यूज टू स्टे देयर. तब आपको उनको उधर रहना ही पड़ेगा. तो वो आइस ब्लॉक से ऐसा घर बनाते हैं और वो लोग क्या करते हैं इग्लू के बीच में कहीं फायर का भी इंतज़ाम करते हैं. जहाँ उनकी घर है ना सेंटर में फायर लगाएंगे तो इससे क्या होता है अंदर की आइस मेल्ट होता है. मेल्ट होके पूरा घर गिरेगी नहीं क्योंकि बाहर इतना ठंडक है कि उनके ऊपर ऐसा वो आइस ब्लॉक्स के ऊपर और स्नो आके बाहर वो उनका घर एज इट इज़ बना रहेगा और अंदर की आइस को भी ये मेल्ट करके अंदर की टेम्परेचर को थोड़ा वार्म अप करके ही रख के ये अंदर रह सकते हैं. Is it okay children? Now the next one stilt houses. These are built on the wooden post called stilts. ये क्या है मैंने समझाया ना आपको. स्टिल्ट हाउसेस को एक वुडन पोस्ट मतलब वुड लकड़ियों की वुड से बनाते हैं. वुडन पोस्ट पे बनाया हुआ घर को हम क्या बोलते हैं stilt houses. These houses are built in areas which have heavy rainfall. जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं तो उधर बहुत पानी कलेक्ट होने की चांसेस हो जाता है. सो व्हाट पीपल यूज टू डू अंडर पहले ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट लेवल पे वो लोग वुडन पोस्ट मतलब वुड से एक छोटा सा गैरेज जैसा अपन कार पार्किंग वगैरह फ्लैट सिस्टम में आपने देखा होगा ना कार पार्किंग के लिए बेसमेंट में जो जगह छोड़ते हैं ऐसा वो वुडन पिलर्स से स्टिल्ट्स बना के उसके ऊपर फिर घर बनाते हैं.
स्टिल्ट्स सेव द हाउस फ्रॉम गेटिंग फ्लडेड, ताकि कभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो उनके घर उस पानी में ड्राउन ना हो जाए, मतलब डूब ना जाए। इसीलिए नीचे थोड़ा वुडन पोस्ट से बेसमेंट बनाएंगे और वो वुडन पोस्ट के ऊपर वो लोग घर बनाते हैं। वी कैन सी दिस टाइप ऑफ हाउस वेयर वी हैव रिटन नंबर 3। सी हियर, आप पहले देखो तो एक छोटा सा वुडन पोस्ट, मतलब अपन पिलर्स बनाते हैं ना, ऐसा वुडन स्टिक से पिलर्स बना के उसके ऊपर इनके घर बनता है, ताकि कभी भी हैवी रेनफॉल भी हो तो भी उनकी हाउस ड्राउन होने के चांसेस नहीं हो। ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर? पक्का हाउसेस, कच्चा हाउसेस, नेक्स्ट इग्लूस, स्टिल्ट हाउसेस एंड हाउसेस विच हैव स्लोपिंग रोफ्स, मतलब हिली एरियाज में जिस टाइप की हाउसेस होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस। सो चिल्ड्रन रीड टिल हियर, है ना, मेक श्योर टू रीड द चैप्टर ऑल्सो।